गुरपूरन नारायण है, गुरदयाल समरथ गुर। गुरु नानक पतत उदाहरण है, गगन दमामा बाजियो परयो निशाने काओ। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन कहे तो। उर्जा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। हमू मर्द बायद शब्द सुखन वर। नाशिक में दिगर दर्द हाने दिगर। चौर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच विराजमान गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र गोद विच इकत्र हो करके आप समूह संगत ने भाई साहब भाई गुरशरण सिंह जी हुणां पासों तुरकी बाणी दे कीर्तन सरवण कीते हन। महापुरुषों के विद्यार्थी होने का इन्हां नूं माण हासिल है। वो सतपुरुष ब्रह्म ज्ञानी विद्या मारदंड संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ही महापुरुषों की संगत करने वाले भाई साहब भाई नाम सिंह जी हुणां पासों बड़े प्रेम सहित विचारा आपने सरवण कीतियां ने। दमदमी टकसाल दे 13वें मुखी की याद विच दमदमी टकसाल दे माणमते इतिहास नूं याद करदियां ये महान समागम करवाए जा रहे हैं। आप समूह इटली दियां संगतां वल्लों विशेष तौर पर यह उपराला किया गया है। कल नूं इन्हां समागमां दे अखीरले दीवान ने आओ उस टकसाल दे इतिहास ते नज़र मारीए। बाणी दे विच ये फरमान है, जिस बच्चे दे माता पिता गुरमतीए होण, गुरमत दे धारनी होण, वो अपने बच्चों नूं प्रेर करके गुरु दे लड़ ला लेंदे ने। बाणी का यह फरमान है, पूता माता की आशीष निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। पिता अते माता की आशीष है बच्चा भी तैनू अख झमकण जिन्ना समा भी परमात्मा ना भुले। भावें फरीद जी की माता है,
ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਗਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਨੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਤੱਤਵੇਤਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮਤੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਸ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਸ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਮਾਣੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆਪ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਖੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਹੂਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1682 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਸ ਸੀ ਸਦਾ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰਵੇ, ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਗਾਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਗਮ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੀਪਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦਵੈਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਇ ਗਇਓ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆँख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मंझधार को ਜਾਂ ਲਹਿਰ को देखे। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਔਰ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨੇ, ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। तो शामी जदों जापान आई है, कई फुट उच्चियां छल्लां उठियां सन।
ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਛੱਲਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਵੀ, ਬੁਲਾਰਾ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਕਥਾਕਾਰ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਛੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਂਖ ਸੇ ਕਿਆ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕੁਲ ਬਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਸਾਹਿਲ ਕੋ ਮਝਧਾਰ ਕੋ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ। ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ। ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਬੀਬੀ ਜਿਉਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਆਖਣਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਦਬ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਮਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਾਗਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਵੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤਕ ਵੀ ਝੁਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਆਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 25 ਸਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਮੂਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਕੱਢ ਜਾਵੇ, ਸਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ 4 ਘਟ ਜਾਣ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਖਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮਗਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾ ਭਰੇਗੀ ਦੂਰ ਜੇ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਬੜਾ ਜੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਰਮਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਨੇ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਖਸਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਤੇ परमात्मा दी ये आवाज़ है, ये जिहड़ी बाणी है ये किहदे बोल ने? जैसी मैं आवे खसम की बाणी, ये खसम दे बोल ने। ते जे खसम दे बोल गूंज रहे ने तो फिर खसम हाजर नाजर है। रब दे बोल ने ते रब हाजर नाजर है, बोल उहदी हाजरी लवा रहे ने। और सदा हाजर नाजर समझना है, मैं नहीं कहता, बाणी कह रही है, सतगुर जागता है देव। दूसरी चर्चा करन दी लोड़ की है इन्हां नाल, तर्कवादियां नाल? उन्हां नूं आखो भी इहदे अर्थ करो, जिउंदा जागदा देवता है गुरु, ते जिहड़ा जिउंदा जागदा पातशाह है उहनूं असीं लिबास भी देना और चौर तां करदे आ, इहदे वर्गा कोई राजा नहीं है। कहू हर समान नहीं राजा, यह भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। आम ही राजियां दे उत्ते छतर हुंदा है, चौर हो रहा हुंदा ते उह ते फिर 25 साली मिट्टी हो जांदे ने, सदा रहण वाला है, क्योंकि रब दी आवाज़ कदे मुकदी नहीं। हाँ, सरगुण स्वरूप जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सरगुण स्वरूप है, ग्रंथ की जो काया है, बिरध हो जावे, संस्कार आपां कर दईए, पर शब्द नहीं मरदा, शब्द मौजूद है। कहंदे जी मत्था क्यों टेकना है? हुण बाणी विच लिखिआ है, नैनी देखो गुर दर्शनो, गुर चरनी मत्था। अखां नाल दीदार करो ते चरनां दे उत्ते मत्था रख दिओ। हुण बाणी दी मन्नीए कि जिहड़ा कुतरकी बंदा, कुतर्क करन वाला बंदा पल पल ते कह रहा जी की ग्रंथ नूं मत्था टेकी जांदे हो, ओहदी मन्नीए। बाणी निरंकार दी है, बाणी तो भाव उहदे बोल ने, उहदा हुक्म है। हुण रब दा हुक्म मन्नीए कि एक मल मूत्र दे लिफाफे दा हुक्म मन्नीए, एक गंदगी दे पुतले दा हुक्म मन्नीए कि खसम दा हुक्म मन्नीए? ते खसम दा हुक्म यह है भी अखां नाल दीदारे करया कर ते चरनां ते सिर रख दिया कर। गुरु दा अदब इदां करना है। इदां ही बाबे दीपे ने अपने परिवार समेत चरनां ते सिर रख दिता है। ते जदों चरनां ते शीश रख दिता ना, किहदे चरनां ते? गुर गोबिंद गोपाल गुर, गुर पूरन नारायण ने, जिहड़ा आप परमात्मा स्वरूप है। गुरु नानक दे तख्त दा जिहड़ा मालक है, हुण उहदे चरनां ते रख दिता शीश। माता पिता डंडौत करके उठ गए। बाबा दीप सिंह, सिंह दा रुतबा हजे 1699 विच मिलना है। वो बाबा दीपा, वो प्रेम नाल जिहनूं दीपा कहंदी है मां, वो चरनां तो उठदा ही नहीं है। गुरु वल ऐसा मुख हो गया भी गुरमुखी बन गया। ते जिहड़ा गुरमुख है, गुरमुख मोए जीव दे प्रवान है। जिहड़े गुरमुख ने, साधु ने, ब्रह्म वेते ने, शहीद पुरुष ने, वो जिउंदे ते मोए प्रवान ही ने। वो दुनिया ते सदा प्रवान ने, सदा उन्हां दी जय जयकार है। गुरमुख मोए जीव दे प्रवान है। और याद रखियो, मनमुख जन्म मर है। मनमुख मरदा जे, गुरमुख मरदा नहीं है। बाबा जरनैल सिंह नहीं मरदे, बाबा अतर सिंह नहीं मरदे, फरीद जी, कबीर जी वर्गे महापुरुष नहीं मरदे। तानी मिट्टी होया है, नाम ते चमक रहा है। मरदे अपने वर्गे ने, जिन्हां दा तन ते मिट्टी होना ही होना है, नाम ही मिट्टी है, कोई चेते करने वाला नहीं, क्योंकि बंदगी कोई नहीं, जप तप कोई नहीं, सिमरन कोई नहीं। ऐसा चरना ते शीश रखिया, ऐसा मुख गुरु वल कीता भी गुरमुख ही बन गया। और जिहड़ा सदा ही जिउंदा है, उहदे दिन, उहदियां बरसियां, उहदे समागम, उहदी याद ते फिर मनाई ही जाएगी। नानक मोए ना आखी है, उन्हां नूं मरे नहीं कहा जा सकता। वो महापुरुष, वो शहीद, वो सतपुरुष जो भी ने, वो सदा हाजर नाजर ने, वो सदा दुनिया ते मौजूद ने। जे गुर कै शब्द समाहे,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਏ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਮੋਏ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸਾਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਦੋਂ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਵ ਵੀ, ਆ 2 ਦਿਨ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਦਰ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਦੀਪਾ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ 9ਵੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਦਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਵੇਗੀ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਭੌਂਕ ਕੇ ਆਖੇ ਬੁਰਕੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਬੁਰਕੀ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਵਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖੀ ਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਾ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਅਮਲੀਆਂ ਰਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਤ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਚੰਮ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਝੋਲੀ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਬੁਰਕੀ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀਪੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਤਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਨ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਫਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸ਼ੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਦਰ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬਾਪੂ, ਔਰ ਉਸ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
वो फिर उहदा ही हो जाता, उठदा नहीं। चलो समा आया, कुछ समय बाद आग्या मंगी है। भाई भगते ने, माता जिउणी ने भी जाना है, अपने नगर नूं जाना है, पोविंड जाना है। उन्हां समयां दे विच दूर दरेडियों लोग दीदारे करन आउंदे सी। हुण ते कारां कूरां बड़ियां तुहाडे कोल जदों मर्जी भजे आउंदे जे। उदों पैदल चलना पैंदा सी, दूरों पैंडा करना पैंदा सी। और जिन्ने भी लोग सन अपनी किरत विचों दसवंध लैके आउंदे सन 6 महीने दीदारे करन। जिहड़े दूर रहिंदे सन, नेड़े वाले ते दीदारे कर लैंदे सन, नाले ते दसवंध लिया के गुरु दे दर ते रख जाना ते नाले दीदार करने, कुछ समा सेवा करनी ते फिर वापस मुड़ जाना। वापस चले ने ते बाबा दीप सिंह ने, भाई दीपे ने जिद की भी मैं पातशाह दे चरना च ही रहना है। इस दरदा हो गया है, दरदा बन चुकिया है, हुण उठन नूं दिल नहीं करता। माता पिता छड्ड गए ते जदों छड्ड के गए उत्थे घोर मोती दे दीदारे होए ने। अज 2 मोती इकट्ठे हो गए, जिहदा नाम है मणिया। भाई मणिया कहिंदे ने। पिता नूं पुछया कलगीधर ने, इहदा नाम की है बच्चे दा? कहिंदे जी मणिया। कहिंदे फिर गुणिया होवेगा, बेअंत गुणां दा मालक होवेगा। ये मणिए तो गुणिया होवेगा, भाव के इहदे विच जिन्ने गुण ने होर किधरे नहीं लभणगे। और इतिहास गवाह है, भाई मनी सिंह वर्गा गुणवान कौन होया सिख जगत विच। गुरु महाराज सच्चे पातशाह दे दर ते होर बथेरे सिख ने। शास्त्र विद्या आरंभ हुई। शास्त्र ते शस्त्र विद्या दोवां दा प्रवाह चल पिया। जिथे गुरमत दे सिद्धांत तो जाणू करवाया जाता है, बाणी पढ़ाई जाती है, उत्थे ही नाल तलवारबाजी, तीर चलाउणा, नेजेबाजी, घोड़ सवारी सिखाई जाती है। दसदे ने भी अरबी, फारसी, संस्कृत, ब्रिज भाषा, गुरमुखी, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत जिन्नियां भी भाषावां ने सारियां बाबा दीप सिंह ने सिखियां ने पातशाह दे दर उत्ते। अज 1699 चढ़िया ते 1699 वाले दिन अमृत की वर्खा होने लगी है, खंडे की पौल तैयार होने लगी है। मैं फिर ये बचन कह देवां, कई बार असीं शंका करते हैं भी तुहाडे कोल सबूत की है भी खंडे की पौल वेले 5 बाणियां पढ़ियां सन। और तर्क कौन कर रहा है? जिन्हें कौम दे लई कदे कोई कारज नहीं किया। मर्यादा नूं कटना वो चाह रहा है जिहड़ा गुरु घर दा दोखी है। जदों गुरु घर दी मर्यादा नाल मत्था लाइए तो फिर सज्जन थोड़ा रहने हैं गुरु घर दे, राम राय वांगू दोखी बन जाने हैं। और रंचक मात्र भी इन्हां लोकां ने सिखी लई कोई कुर्बानी नहीं की ते ना गां करनगे। शरधा है नहीं है, भावना है नहीं है। इन्हां नूं रुमाले चंगे नहीं लगते, चौर चंगा नहीं लगता, लंगर चंगे नहीं लगते। जदों गुरु नाल प्यार ही नहीं है तो गुरु लई सिर कित्थों वारनगे? सिर ते वो वारे ना। बेअदबी ते उहनूं गुरु दी महसूस होवे जिहड़ा गुरु नूं हाज़र नाज़र समझे। जिवें बाबा दीप सिंह नूं बेअदबी महसूस हुई भी इन्हां ने सरोवर पूरता बेअदबी कीती हरमंदर दी। बाबा जरनैल सिंह नूं महसूस हुई। ते जिहदे लई एक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, जिहदे लई एक आम ग्रंथ है, इन्ना की अदब है, दसो इहदे लई सिर की देवेगा? उन्हें कहना कोई नहीं गा, ग्रंथ नवां लै आवांगे, यही आखेगा ना। ते जिहदे लई हाज़र नाज़र पिता है ते अपने पिता दी बेअदबी कदे भी बच्चा फिर नहीं जरदा, उहदे गल पैंदा अगों। दीन दुनिया दे पातशाह ते तर्क करन वाले कहिंदे जी 5 बाणियां दा की सबूत है?
वैसे तो शिबर का बंसावली नामा भाई शिबर का वो भी मौजूद है। सब तो वड्डी उगाही बाबा जीवन सिंह, जिन्हों ये माण हासिल है भी 20,000 सिखां विचों कल्ला ही मर्द निकलिया सी दिल्ली विच, जिहड़ा 9वें बापू का शीश लैके आनंदपुर पहुंचिया सी, जिन्हें सिखी रख लई सी दिल्ली दी, और शहादत की अवधि का माण भी उसनूं हासिल है। वो शहीद भी होया जे, और जदों सीस लियाउण दी सेवा निभाई तो यह भी माण उसनूं मिलिया गुरु के बेटे होण दा, रंगरेटा गुरु का बेटा। उस महापुरुष ने जो वेख्या है, जदों अमृत संचार किया ना पातशाह ने, जो वेख्या है 1699 दे विच अमृत विधि दे विच वो लिखदे ने, ये ग्रंथ ये पुराना खलड़ा फरीदकोट वाले किले विखे पिया, और ओदा वो लत्था करके उन्होंने छपा के प्रोफैसर गुरमुख सिंह पटियाला यूनीवर्सिटी ने संगत के सामने हाजिर किया सी। उहदे विच साफ लिखिया है, जप जाप सवैये चौपी आनंद सो पाठ सो पाहुल त्यार करीजै। जप जाप चौपई सवैये आनंद सो पाठ सो पाहुल त्यार करीजै। जप जाप सवैये चौपी आनंद नूं पढ़ के पाहुल तैयार किया गया है। ते जे कौम लई सिर देण वाला ये गवाही भर रहा भी मैं वेख्या है, तो फिर सानूं दुखियां तिकियां दे तर्क तो डरन की लोड़ नहीं। इन्हां ने कीता की है कौम लई भी इन्हां दा बचन मन्नीए और उहदा बचन कट्टीए जिन्हें कौम लई सिर वारिया होया है। ते जे असीं एक ऐसे मामूली गुरु घर दे निंदक की गल मन के अमृत ते तर्क करना है, ते गुरु घर लई सिर वारन वाले महापुरुष की लिखत नूं नज़र अंदाज करना है, तो फिर रब दे घर गुरु दे घर जगह नहीं सानूं मिल सकती, नरक दे खुल जाणगे। सो असीं ये कंपेयर करना है भी गवाही जो दे रहा है उहदे बराबर आ दुखी तिक्की जे आ जिहड़े बनौटी प्रोफैसर ने, इन्हां दी हस्ती की है दसो। जे तो कोई हस्ती है उन्हां दे सामने तो फिर तो इन्हां दी मन लईए। ते जदों वो गुरु तो आपा वारन वाले ने और गुरु दे बेटे होण दा माण है, इहो जे नलायकां दे नाल उन्हां दी लिखत नूं जे कंपेयर करांगे तो जे पख नलायकां दा पूरांगे तो असीं भी उन्हां दी कतार विच ही आ जावांगे। सो थोड़ा जिहा विचारिया करो। दीन दुनिया दे पातशाह ने खंडे दी पौल बख्शी है। एक कमाल दा वचन उत्थे भाई नंद लाल ने लिखिया है, कहंदे भी उस अमृत दे छिट्टियां विच इन्नी ताकत सी, शेराने अफवाजे मनसूर यश यकातास। शेराने अफवाजे मनसूर हुंदा है जित प्राप्त करना है। यक कहंदे ने फारसी विच एक नूं, अफवाजे दुश्मनां नूं, आखन लगे शेराने अफवाजे मनसूर यश यकाताज। यकाताज एक 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 कला कला लड़न वाला, मनसूर जित प्राप्त करन वाला। कहंदे सिखा उहदे छिट्टे अमृत दे ऐसी बरकत बख्श दिंदे सन भी कला कला लखां दे नाल टकराउण लग पैंदा सी वो सिख, जिन्हें भी खंडे दी पौल लैके सिंह दा रुतबा हासिल कीता सी। ये भाई नंद लाल दी गवाही है। ते अमृत नूं तोड़न वाले चाहुंदे ने भी सानूं फिर शेर तो गिद्दड़ बना दिता जाए, ते पंडित होनी साडे ला के गातरे पा के गलों च धागे ते फिर बामण बना लैण, जिथों चले सी उत्थे लै जाण। गुरु महाराज सच्चे पातशाह शेर बना दिंदे ने, ये भाई नंद लाल जी कह रहे हैं। और उन्हां तो वड्डा गुरमुख गुरु घर दा सेवक कौन है, विद्वान भी कौन है उन्हां तो वड्डा? गंजनामे विच जिक्र है, कलगीधर दी
वडियाई दे विच उन्होंने लिखिया है। खैर खंडे की पौल प्राप्त हो गई। अज भाई भगता ते बीबी जिउणी फिर बच्चे नूं मिलन आए ने। ये 1703 की गल है। ते जदों बच्चे नूं मिलन आए ते पातशाह नूं आके कहंदा है, भाई भगता जी असीं अपने लाल तुहाडे दर दे सेवादार कूकर दीपे नूं, भाई दीपे नूं मिलन आए हाँ। पातशाह ने आवाज़ मारी ते ओ सामने तुरिया आउंदा ते आवाज़ मारी है बाबा दीप सिंह कह के, दीपा नहीं दीप सिंह कह के उधरों तुरे आउंदे ने। ते जदों माता पिता ने वेख्या है एडा सिर ते दमाला है, चक्कर झुल रहे ने, कलियां वाला चोला पाया बाबे ने, जिदा बापू हरगोबिंद साहब का मिलता ना 52 कलियां वाला। आ पजामियां तो सानू गोरे पवा गए, साडा लिबास चोला ही सी। अज भी जाके वेख लो, दस्तारां भी साडियां तिखियां यही गोरे ही करवा गए, साडे दस्तारे गोल सन। खैर बगाने की थाली का लड्डू सानू चंगा लगता है, आपदा तो असीं किसी दे थोपदे नहीं भी बाहर आए हैं, पंजाब तो बाहर आए, देश तो बाहर आए, इन्हों सिक्खी ना जोड़िए, सगों मूँह सिर उन्हां वर्गा बना लेंदे हैं जिन्हां दे देश विच जाके रहीदा। वो इत्थों गए तो उत्थों दे लोकां नूं आपदे वर्गा कर रहे, ते असीं इत्थे आए बकायदा इन्हां नूं बदलदे, आप असीं उन्हां वर्गे होए पए हैं। एडे चक्कर झुलदे ने, कमर कसा लाया है, शस्त्रां नाल लैस है, मोढे ते पट्ठा है। ते पिता ने वेख्या भी दीपे नूं सिंह क्यों आख्या, ते जदों ऐन चमकदा दमकदा बाबा दीपा आउंदा वेख्या ते मूहों निकल गया, पातशाह वाकया ही सिंह बना दिता जे, शेर वर्गा लगदा है। वाकया ही शेराने अफवाजे मंसूर यश यका ताज, वाकया ही लखां नाल लड़न वाला बना दिता है। बेनती कीती जी इनू नाल लै लईए, कुछ समा पिंड लै जाइए। बाबा दीप सिंह नहीं जाना चाहते, पर पातशाह ने आख्या कुछ समा ऐसा आने वाला सी, कुछ आने वाले समय सेवावां लैणियां सी, छुट्टी देनी ठीक समझी। 1703 विच पिता भाई भगता माता जिउणी बेनती करते ने जी नाल लै जाइए, ते पातशाह आग्या देण लगे, एक हुक्म करते ने, कहंदे देख दीप सिंह गुरु नानक दा सिख जिथे भी जावे वो सिखी दा प्रचार ते प्रसार करता है, जिथे भी जावे। और भाई गुरदास ने साफ लिखिया है, भाई गुरदास जी ये गल साफ कहंदे ने, घर घर अंदर धर्मशाल होए कीर्तन सदा सोआ। जिथे भी गुरु दा सिख जावे कीर्तन शुरू हो जावे, उही गुरु घर धर्मशाला बन जाती है। ते गुरु दे सिख नूं हर जगह ही परमात्मा की कीर्ति करनी चाहिए है, जिथे भी बैठे। खैर पोविंड आ गए, जो महाराज का हुक्म सी वो कीता, बाणी पढ़नी, गुरु घर दा जस करना। 1704 दे विच दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी का परिवार विछोड़ा हो जाता है। आनंदपुर छड्डना पिया 6 पोह दी रात। 1704 दे विच कोई इत्थे 20-21 दसंबर के इर्द गिर्द आनंदां दी पुरी छड्डनी पई है। सरसा दे परिवार विछड़ गया है। और वो फारसी का महापुरुष लिखता है, जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, डूबे हुए सरसा में प्यारे नजर आए। वो कहता देखिया है जान तो प्यारे सिंह डुब रहे ने, गोते खा रहे ने, साजो समान डुब गया है। माता विछड़ गई, महल बीबी सुंदर कौर
माता सहब कौर, माता सुंदर कौर, माता गुजरी जी, दो छोटे मोती, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह विछड़ गए। पातशाह चमकौर दी गढ़ी पहुंचे, दो मोती इत्थे विछड़ गए। अज अखीरली रात है 7 पोह दी, 8 पोह चढ़न वाला, शहादत होने वाली है। ते रात नूं एक बचन कीता उस कलगीधर ने, कहंदे थे 4 हो अब 2, सहर यह भी ना होंगे, हम सब्र करेंगे अगर यह भी ना होंगे। 4 सी सहर सवेर होएगी। वो फारसी दा धुरंधर विद्वान हकीम जोगी अल्लाह यारखा कहंदा भी सवेरे तुसीं दोवां ने भी नहीं रहना। कलगीधर कहंदे पर मैं सब्र विच ही होवांगा, मैं उहदे हुक्म विच ही होवांगा, मैं उहदा भाणा ही मन्नांगा, मैं डोलांगा नहीं। तो वेखो रब डोलदा नहीं है, ना खुशी ना गमी। हाँ साडे वर्गे वैराग भी करते ने, दुख विच रोंदे ने, खुशी विच असीं नचणों नहीं हटते। और साडी ते छड्डो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े पैगंबर भी इत्थे टुट जाते ने जदों काके दी हिक विच तीर वजा दिख जावे ते। पर कलगीधर की कहंदे ने, हम सब्र करेंगे अगर यह भी ना होंगे। वो कहंदे ने पहले पिता कटाया अब बाप कटवाऊंगा, पहले पिता कटाया अब बेटे कटवाऊंगा, नानक का बाग खूनी जिगर से नहलाऊंगा। पिता कटवा दिता है। बच्चे कटवाने ने सिखां पुछया जी कादे लई? कहंदे गुरु नानक दा सिੱਖੀ दा बूटा किते सुक ना जावे। लोग ते बूटियां नूं पानी पा के हरियां भरियां करदे ने ते पानी दिंदियां भी कई बार बूटा सुक जाता है। मैं बच्चों के लहू नाल सिੱਖੀ दा बूटा सिंचना है, रहिंदी दुनिया तक ये कदे भी सुकेगा नहीं। ऐसा कलगीधर पातशाह सरबंस नूं वार के माछीवाड़े दे जंगलां थाणी नंघ के दीने कांगड़ जफरनामा लिख के, जेड़ा औरंगजेब किसी तलवार नाल नहीं सी कटिया गया, एक कलम दी मार नाल कट के खत्म करके उहदा वजूद दुनिया तो मिटा के ये पहुंच गए ने उस ढाब ते जिथे भयंकर युद्ध होया मुकतसर दे इलाके विच। युद्ध जित्तिया दमदमा साहब इसलिए ना पिया है क्योंकि वो ढाब वाला जंग जित के ते बापू ने कमर कसा खोल दिता जंग वाला। हुण उत्थे दूर दरेडियों संगतां नूं पता लगा भी पातशाह आए ने। वैराग करदियां संगतां जी बच्चे साहिबजादे शहीद हो गए। इत्थे भाई मनी सिंह माता सहब कौर ते माता सुंदर कौर नूं दिल्ली तो लैके पहुंच गए ने। बाबा दीप सिंह नूं पता चलिया पहू विंड तो वो आ गए ने। समुचे जगत चों संगतां गुरु के प्यारे सिंह पहुंचे ने। बड़ा वैराग किया सारियां ने। जदों वैराग विच ने कुछ समा इस तरह बतीत होया ते वो जिहड़ा भाई मनी सिंह है महापुरुष है, उस भाई मनी सिंह ने यह बेनती की दातार भी तुहानूं एक बार असीं आनंदां दी पुरी विच बेनती कीती सी भी श्री आदि ग्रंथ साहिब जी दे हजे गुरु का रुतबा नहीं ना मिलिया। श्री आदि ग्रंथ साहिब जी की बाणी अगम बोध है, अर्थां की सोझी नहीं है सिंघां नूं, और अगमी अर्थ सानू किरपा करके समझाओ, सानू बाणी की शुद्धता बारे दर्शाओ, संथ्या करवाओ। ते पातशाह कहंदे मनी सिंघा ठीक है, हुण जंगां युद्धां दा समां ते लंघ गया, हुण अंदरले जंग नूं जितण लई मजबूत करना मैं सिंघां नूं। अंदर भी विकारां नाल जंग लगी रहिंदी है, बाहर मुगलां नाल लगी सी, अंदर काम क्रोध नाल लगी है, बाहर लोहे की तलवार चुकी है, तीर धनुख चुके ने, अंदर ज्ञान की खड़ग चुकनी पैंदी है।
जंग ते सथूल ते सूखम दोवें बन्ने, किसी नूं काम ढाई बैठा, किसी नूं बाहर दुश्मन ढा लैंदे ने, जंग दोवें बन्ने चलदी है। महाराज ने आख्या भी जाओ धीर मलियां दे कोलों सरूप लैके आओ। भाई गुरदास जी ने जो लिखिया सी रामसर दे पास श्री हरमंदर साहिब विखे, जाओ वो सरूप लैके आओ। अमानत है गुरु घर दी लैन चले गए, तो जदों सरूप लैन गए ना तो धीर मलिए अगों कहिंदे भी जे गुरु नानक दे तख्त दा 10वां मालक खवाउंदा है, भी सिखो तुसीं उहनूं गुरु नानक दा अवतार कहिंदे हो, परमात्मा दा 10वां चोला कहिंदे हो पहन के आए ने। और गुरु नानक पहला चोला पहन के आए ने। गुरु नानक दी बाणी, गुरु अंगद साहिब दी बाणी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन साहिब दी बाणी, भट्टां दी बाणी, भगतां दी बाणी। जे गुरु नानक दी जोत उहदे विच है ते ग्रंथ क्यों मंग रहे ने, आप उचार लैण, क्योंकि निरंकारी जोत है, परमात्मा दा स्वरूप है। इन्नी भी करामात है नहीं, ताकत है नहीं। जदों ये बचन कीता ते नाल ये भी कह दिता भी वेखो गुरु नानक साहिब वाला काम ते कोई करदे नहीं, भी माला फेरनी, फकीरी विच रहना, ये ते छड्ड दिता, ये ते जंगां जुद्धां विच झगड़ालू होए फिरदे ने। इन्हां ने आदि ग्रंथ की करना, ये ते प्रेम दा उपदेश दिंदा है। ते जे पूरा गुरु है ते आपे उचार लवे, नकल मारन लई ना मंगे ग्रंथ साडे कोलों। हंकार वस ये बचन निकल गए मूहों, ते गुरु घर नूं हंकार चंगा नहीं लगदा, रब नूं हंकार चंगा नहीं लगदा, पाउंदा नहीं है। महाराज नूं आखण लगे जी वो तो स्वरूप दिंदे ही नहीं, वो कहंदे जे गुरु पूरा है ते आप उचार लवे। ते पातशाह कहंदे भी लै फिर मनी सिंघा तैयारी कर तू लिखण दी। और बाबा दीप सिंह नूं ये हुक्म हो गया भी लै बाबा दीप सिंघा कलम दी लोड़ है, शाही दी लोड़ है, ते कलम ते शाही तू ले आ। शाही मुक जावे, कलम टुट जावे, तू प्रबंध पूरा रखना। ये लिखणगे और तू वाहिगुरू ये लिखणगे, तू शाही ते कलम दा प्रबंध रखी। भाई मनी सिंह ते बाबा दीप सिंह नूं ये सेवा दिती गई ते एक ओंकार तो उस नारायण नानक निरंकारी दा 10वां चोला बाणी उचारन लग पिया। जप जी उचारी, सोधर उचारिया, सोहला उचारिया, चलदियां चलदियां श्री राग लंघिया। अखीर जिथे जिथे भी पातशाह नूं पाया, 9वें बापू दे शब्द, गुरु तेग बहादुर साहिब दे शब्द पाए गए। अखीर ते श्लोक रखे गए। वैराग दी बाणी गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, ये बाणी रखी गई। और अखीर ते रागमाला। और ध्यान दिओ रागमाला दे उत्ते महला नहीं है। ते कई बार साडे मन च, वो भी साडे गुर भाई ने, शंका ते किसी दे मन च भी आ सकता है। वो गुरमुख प्यारे कई शंका कर लेंदे ने भी शायद इहदे ते महला लफ्ज नहीं है, इस करके ये बाणी नहीं। दूसरा शंका वो वीर ये करते ने भी ये राग विच नहीं, ये तो एक गंढ मारी है राग माला नाल महाराज ने। उतले बने गंढ जपजी साहिब नाल दिती है ते थले गंढ राग माला दी है, फिर दस्खत ने। हुण तुसीं जिन्ना तर्क राग माला ते करोगे, उही तर्क गुरु ग्रंथ साहिब दी वजूद कही जाती बाणी जपजी साहिब ते होवेगा। महला लफ्ज रागमाला उत्ते नहीं लिखिया पातशाह ने। वैसे पुरातन कई स्वरूप तुहानूं मिलणगे उत्थे महला पंजवां लिखिया है, पर ये जड़ियां बाबा दीप सिंह ने शाही तैयार की, कलम तैयार की, भाई मनी सिंह ने
बीड़ लिखी ते बाबा दीप सिंह ने 4 बीड़ां लिखियां, इहदे विच महला लफ्ज़ क्यों नहीं है? पातशाह ने लिखाया नहीं। कारण की है? क्योंकि जपजी साहब दे उत्ते गुरु नानक साहब ने महला नहीं लिखिया। ध्यान दिओ इस गल नूं, ये 2 वड्डे शंके ने वीरां दे। जपजी साहब दे उत्ते महला लफ्ज़ नहीं लिखिया ते जपजी साहब किसी राग विच भी नहीं है। जो राग माला है वही जपजी साहब विच है। जे वो राग विच नहीं तो यह भी नहीं, उहदे ते महला नहीं, इहदे ते भी नहीं। तो बापू ने वेख्या भी गुरु नानक साहब ने महला नहीं लाया तो राग माला भी उस तरह परो दिती है और गंढ मार दिती भी इनू वध घट नहीं किया जा सकता, दस्खत कर दिते। तो जिथे रब की मोहर होवे साडी हस्ती नहीं है किंतु परंतु करिए। खैर फिर भी कई बार शंका हुंदा है, किसी नूं बुरा भला कहण नालों बैठ के विचार करके शंका कढ लेना चाहिए। गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने तकरीबन 9 महीने लग गए ने, उत्ते कुछ दिन लगे। ये श्री आद ग्रंथ साहब 18-10-20 संपूर्ण उचारिया है। वो जो कहते सी भी नकल जू मारनी है, आप उचार लवो। महाराज सच्चे पातशाह ने आप उचारिया है। ते जदों ये बाणी उचार दिती गई, 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ नाल संथ्या कराई गई सी। 48 महापुरुषां नूं भाई मनी सिंह, बाबा दीप सिंह, बाबा राम कोयर जी, बाबा गुरबख्श सिंह जी आदਿਕ 48 ਸਿੰਘ ने उत्थे, जिन्हां नूं ये माण हासिल है। खुद खुदा कलगीधर दे पासों कथा सरवण कीती है उन्होंने। इत्थे तुहानूं कोई कथा सुणावे, कोई कीर्तन सुणावे, कोई ढाडी वारां सुणावे ते तुसीं अगले तो बलहारे जांदे जे भी गुरु घर दा सानूं जस सुणाया इस गुरमुख ने। अदब करदे जे, तुसीं सत्कार दिंदे जे और अपने आप नूं वडभागे समझदे हो भी गुरु दी गोद विच समा सफला कीता है। ते ये 48 ਸਿੰਘਾਂ दा कैसा रुतबा होवेगा, कैसा मान इन्हां महसूस कीता होवेगा जिन्हां नूं खुद खुदा कलगीधर ने कथा सुनाई होवेगी। अगमी बोल सुनाए होणगे, अगमी वचन सुनाए होणगे, अगमी अर्थ सुनाए होणगे। खैर आपां ते 1-2 अर्थ करने जानते हैं। वो नारायण दी खसम दी बाणी है ते इहदे अर्थ किन्ने ने, ये समुंदर दा उधर किड्डा है, ये कलगीधर ही जानदा, आपां नहीं जानते। आपां दे अपनी सुरती नाल 1-2 अर्थ कर लैने आ। खैर हुण गुरु महाराज ने इत्थे दीन दुनिया दे पातशाह ने जदों अर्थ सुना दिते ते मैं कई बार सोचदा है पातशाह ये करामात है, ये है ही करामात, होर की है दसो। भी एक ओंकार तो लैके सारी बाणी तुसीं चार रहे जे। धीर मलिया स्वरूप नहीं दिता, तुसीं वो स्वरूप पढ़ के नहीं देखिया, तुहानूं वो स्वरूप कंठ नहीं है, तुहानूं वो स्वरूप याद नहीं है। ये कित्थों आ रही है बाणी? मैनूं फिर चेता आ गया, जैसी मैं आवे खसम की बाणी। 10वां चोला है, बाणी खसम दी है, निर्गुण स्वरूप है। जिद्दां गुरु नानक साहब नूं आई उदां ही कलगीधर नूं आ जावेगी। सारियां विद्यावां दा धुरंधर बादशाह, कुल विद्यावां नूं दुनिया दे उत्ते लैके आउण वाले सच्चे पातशाह ने ये बाणी उचारी। 18-10-20 उचारी। मैं फिर पढ़ दवां। गुरु जिहड़ा है वो परमात्मा स्वरूप है, ये शंका नहीं रखना। साफ किया है भट्टा ने, यह पद्धत ते मत चूकै है रे मन चूकै। भुलेखा ना खाई, तिलक ना जाई, टपला ना खा जाई। की भुलेखा जी? यह पद्धत ते मत चूकै है रे मन भेद बभेद न जान बियो प्रतश हृदय गुर अर्जन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। कहते भुलेखा ना खाई, कदे भुलेखा खा जावे भी गुरु अर्जन साहब किते रब वर्गा है। नहीं, कहते रब वर्गा नहीं, गुरु अर्जन ही रब है। पूर्ण ब्रह्म निवास, पूर्ण तौर ते गुरु अर्जन ही ब्रह्म स्वरूप है।
ब्रह्म दा निर्गुण दा चोला है, पूर्ण तौर ते ब्रह्म उहदे विच समाया है। जिवें राम जी विच 14 कला, कृष्ण विच 16, मुहम्मद जी विच बेअंत बरकतां, कईयां महापुरुषां विच करामातां हुंदियां ने जो साडे नालों वध के ने, पर इत्थे गुरु अर्जन दे विच संपूर्ण ही ताकतां ने, ना 14 ना 16, संपूर्ण ही रब दीयां ताकतां गुरु अर्जन साहब कोल ने। तां करके उसनूं जगत गुरु और ये आख्या जांदा गुर अर्जन प्रतख हर, है ही रब गुरु अर्जन। सब देवी देवते जिस किसी का भी वो इष्ट देव ने, उन्हां वीरां नूं मुबारक ने, पर सारियां नालों वड्डियां बरकतां गुरु अर्जन साहब दे कोल ने। उन्हां वर्गा कोई नहीं है। सब निके अफसर ने, गुरु अर्जन साहब DIG ने, सारियां दे उत्तों दी ने, सब सिपाही ने उन्हां दे दर दे। और वो चोला तो पुराना हो ही जाना, अज 10वां चोला पा के आ गए ने। ते जिहड़ा आप नारायण है, खुद खुदा है, जिहदे विच संपूर्ण ब्रह्म समाया होया है, दसो उहनूं की लोड़ पई है। केवल गुरु घर की अमानत समझ के आदि ग्रंथ साहब मंगिया सी, होर उन्हां नूं लोड़ नहीं है भी मैं वेख के उचारना है। संपूर्ण बाणी आप उचारी। अज दमदमा साहब बैठे ने, चाले पाउणे ने नंदेड़ नूं, किवें बाबा दीप सिंह ते भाई मनी सिंह ने चरण फड़े ने। चरण फड़ के की दात मंगी है। कल दे दीवाना विच आप संगतां दे सन्मुख हाज़र हो के जिवें गुरु पातशाह किरपा करनगे सरवण करन दा संगतां जिक्र करियो। दास आप संगतां नाल विचारां दी सांझ पाउण दा यतन करेगा। मैं बेनती करां, इत्थे टकसाल दी साजणा होवेगी और सीने बसीने बाबा दीप सिंह तो 13वें मुखी संत ज्ञानी करतार सिंह जी दे जीवन ते चानना पा के कल नूं दीवाना दी समाप्ति है। आप संगतां दे पासों खिमा दे जाचक होवांगे। भाई साहब भाई महताब सिंह जी हुण आप संगतां नाल गुरमत विचारां दी, गुर इतिहास दी सांझ पाउणगे। ये ढाडी जिहड़ी परंपरा है ना, ढाडी पुरुषां दी, ये 6वें पातशाह की बख्शिश है। जम्मिया खून खौल उठे, गिदड़ा तो शेर बनाउण लई अकाल तख्त साहिब साज के उहदे सन्मुख अज भी ढाडी वारां चलदियां ने। जिथे असीं बाणी नाल जुड़ना है, उत्थे इतिहास का भी रुतबा बुलंद है, इतिहास नाल भी जुड़ना है। सो एकाग्रता बना के आप संगतां ने यह सरवण करना है। दास खिमा दा जाचक है, संगत ने गुरु साहब ने बख्श देना जी। गज वज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।